So good evening, friends. A warm welcome to all of you from Mars Training Academy. So today we are presenting the 7th session of Emotional Intelligence. Thanks for joining us. So friends, as you have been noticing in all the previous sessions that we are following the Cannon Emotional Competency Model. And this is a step-by-step process to learn the various skills of emotional intelligence. And this is one of the best models to understand this subject and practice it. So we have actually covered the first 4. If you see that from the base of the pyramid, we have covered the first 4. And now today we are on the climax of our subject. Climax is self-actualization and happiness. So friends, the ultimate purpose of developing the skills of emotional intelligence is self-actualization and happiness. That's what should be and is our aim. Normally, all of us, our aim is happiness and self-actualization. So today we will be focusing on these 2 aspects. That is the climax. कि लाइफ में बहुत सारे बाउंसर्स आते हैं, हमें डक करना है, हर बॉल को मेरिट पे खेलना है. See how profound this dialogue is for our day-to-day life. हर तरह के बॉल हमको लाइफ में फेस करना पड़ता है, हर बॉल को मेरिट पे खेलना है. सो और स्कोर बोर्ड टिक करता रहेगा. अगर हम मेरिट पे खेलते रहेंगे, स्कोर बोर्ड लाइफ का टिक करता रहेगा. सो फ्रेंड्स, वी हैव टू प्ले आवर गेम ऑफ लाइफ on the basis of what this elderly and wise person advised Dhoni. Okay, now we move forward. Now we come to the ways to manage emotions. Now there are many ways to practice emotions, friends. This is again a very, very topical subject for all of us, especially during times of COVID. See, we are all, everyone is under stress. Under lockdown and stress, and people are having lot of depression, high blood pressure, and lot of mental health related problems are have peaked these days. So how to, the main question arises is how to manage emotions. So देखिए, इसमें कई techniques हैं. One of the techniques is we have to practice self awareness. Now, friends, आपको मालूम होगा जब कि सबसे पहला जो हमने स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलप किया था अपने वेबिनार सीरीज 1-2 में, that was on self awareness. So that is the foundational skill. तो हमने उसमें what is all about it? What is self awareness? देखिए फ्रेंड, ऐसा है ना, it is basically our ability to recognize what we are feeling and why we are feeling that way. और हम जो फील कर रहे हैं उसका दूसरों पे क्या असर पड़ेगा, हमारी बिहेवियर का दूसरों पे क्या असर पड़ेगा. ये 3 चीजों पर हमें हमेशा ध्यान रखना है. एक तो हमें अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना होगा. वी हैव टू प्रैक्टिस इट. हम तो नॉर्मली अवेयरनेस हमको नहीं होता है, बस हम मतलब लाइफ खेलते रहते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स. वी हैव टू प्रैक्टिस इट. हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि what we are feeling and how we are feeling that way, as well as कि हमारी फीलिंग्स का असर हमारे बिहेवियर पे पड़ता है, तो वो बिहेवियर का दूसरों पे क्या असर होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है. जब हम सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि वी स्टार्ट टू channelize. Once we start practicing self-awareness, we start to channelize our emotions in our favor. We begin to leverage our strengths. That is, we start to put our strengths to work for us and start working on our weaknesses also. That is the importance of practicing self-awareness.
बेनिफिट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सी देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि जब हमारी इमोशंस जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं ना, तो क्या होता है कि हम अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इट लीड्स टू वायलेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड फिजिकल वायलेंस लॉट ऑफ टाइम्स, अपने फैमिली में, अपने वर्क प्लेस में, और हम लोगों पे चिल्लाने लगते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पर उसका बहुत बुरा असर पड़ने लगता है। लेकिन अगर हम सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करने लगें तो क्या होगा, हम इतना इम्पल्सिव नहीं होंगे, हम अपने इमोशंस को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू मेंटेन आवर काम, एंड it will help us to gain control over our negative and destructive emotions. Friend, this is so very important. और आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, you will become more likable in society, in family, in your workplace, and you will become a happier person. You will be more successful in life. Second method to manage emotions. First, I discussed that practicing self-awareness. Second method to manage your emotions is एक्सप्रेस योर इमोशंस। देखिए ये बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग क्या होता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। देखो वो धोनी अपने बॉस को क्या बोल रहा था, यही बोल रहा था ना कि उसके बॉस ने कहा ना, तुम बोला करो, शेयर किया करो, अपने अंदर अंदर मत रखो। वही बात है, कभी भी अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर हम इमोशंस को सप्रेस करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो बार बार वापस आएगा। हमको तो लगेगा कि हमने सप्रेस कर लिया है, बट ऐसा होता नहीं। हम कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते उसको, वो बार बार वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो ज्यादा इंटेंसिटी से वापस आएगा और हमको लाइफ लॉन्ग परेशान करता रहेगा। फ्रेंड्स, देयर इज अ सेइंग दैट इन साइकोलॉजी दैट व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। कभी किसी चीज को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि वी गो ऑन accumulating lots of negative emotions, lot of negative energy in our nervous system, which is harmful for our mental and physical health. This causes lot of psychosomatic diseases and psychological problems in life. तो इसलिए कभी भी हमें अपने emotions को suppress नहीं करना चाहिए. You must express them to someone whom you trust. ये बहुत जरूरी है. Now, awareness and acceptance of your emotions. Friends, this is again very profound. Awareness and acceptance. ये दो चीज आप याद रखना. Awareness and acceptance of your emotions helps you to express them and release them. Release कर देना चाहिए उसको, दबा के नहीं रखना चाहिए। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम रिलीज होता है ना, ऐसे ही हमको अपने इमोशंस को रिलीज करना है। कैसे रिलीज करेंगे? शेयर करके, उसको अंदर अंदर नहीं रखना है प्रेशर कुकर के जैसा। Now, third method of managing emotions is observe your emotions without judgment. कभी भी हमें judgmental नहीं होना चाहिए कि कई दफा हम अपने emotions को एक label दे देते हैं, good, bad, हम label दे देते हैं। हमें label नहीं देना चाहिए। Just become an observer of your emotions. अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जैसे क्लाउड आता है ना, क्लाउड आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, ऐसे आपके अंदर, हमारे अंदर माइंड में इमोशंस आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। हमें लेबल नहीं करना है, जजमेंटल नहीं होना है, एक ऑब्जर्वर। द मोमेंट यू बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ योर इमोशंस, तो उसका चेन वहीं टूट जाता है, इमोशंस का चेन टूट जाता है बाय बिकम एन ऑब्जर्वर। यू हैव टू ब्रेक द चेन। देन नेक्स्ट मेथड ऑफ मैनेजिंग योर इमोशंस फ्रेंड्स इज reframing. Now reframing again, it is E plus R is equal to O, like events plus response is equal to outcome. हम सबके लाइफ में इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स आर फिक्स्ड, वो चेंज नहीं कर सकते। अभी कोविड एक आया है, वो इवेंट है। फिर होता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स हमारा चॉइस है। कोई भी इवेंट लाइफ में आएगा, सबके आता है, लेकिन हमारे हाथ में क्या होता है कि हम उस पर रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं। It decides the outcome, it decides the result. कभी भी इवेंट स्ट्रेस का रीजन नहीं होता फ्रेंड्स। स्ट्रेस का रीजन होता है हमारा रेस्पॉन्स, हमारी परसेप्शन। जो परसेप्शन है लाइफ में, वो हमारा रेस्पॉन्स
डिक्टेट करती है. सो हमें चूज करना है कि वेदर वी हैव टू फील गुड और वी हैव टू फील बैड. नाउ रिफ्रेमिंग एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है टू मैनेज इमोशंस. नाउ व्हाट इज रिफ्रेमिंग? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. फ्रेंड्स, रिफ्रेमिंग इज अ सिंपल टेक्निक by which we can change the way we perceive an event. It's very simple. Reframing is nothing but a simple technique by which we can change the way we perceive an event and then respond positively. Now, by changing our perception, what happens? The moment we change our perceptions and point of view, we can change our emotions connected to the event. Now, to make things simple to understand, हम एक दो तीन एग्जाम्पल लेके चलते हैं. See what is the meaning of reframing. पहला एग्जाम्पल आपको हम देते हैं. Let us take the example of rain. Now, rain is an event. Okay. Now, it is neither good nor bad in absolute terms. It's an event. For some, it may be good. For some, it may be bad. It's depends on the way we perceive rain. Now, rain can be an unpleasant experience for whom? For a person who is out of home without an umbrella. It's an unpleasant experience for someone who has booked tickets for seeing a thrilling cricket match. तो उसको बहुत टेंशन हो जाएगा, का सारा उसका प्लान खराब हो जाता है. And rain is unpleasant for a person who lives in a flood prone area, low lying area, and there is heavy waterlogging preventing you to catch a train or preventing you to catch a flight or preventing you to attend an important interview or meeting. तो ऐसे जब circumstances होती हैं तो रेन जो है हमारे लिए अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाता है. रेन तो एक इवेंट है. The same rain, the same event of rain can be a nice and welcome experience when, for example, if you are a farmer and experiencing prolonged drought, आप एक किसान हो, बहुत लंबे सूखे से आप जूझ रहे हो, तो आपके लिए तो रेन तो वेलकम हो गया. Then suppose आपका शहर जो है उसमें acute water shortage है, पीने का पानी नहीं है, बड़ी मुश्किल से पानी की सप्लाई हो रही है, every day it's a struggle to get water. तो जब रेन्स आते हैं तो इट्स मोस्ट वेलकम. या फिर समझो इतनी गर्मी है, इनटॉलरेबल हीट है और आप उसको सह नहीं पा रहे हो. उस समय जब बारिश होती है तो इट्स बिकम सो प्लेजेंट. पीपल सेलिब्रेट द फर्स्ट रेन. सो रेन अपने आप में एक इवेंट है और ना तो वो अच्छा है बुरा है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी टेक इट, हाउ वी परसीव इट. सेकेंड एग्जाम्पल मैं देता हूँ फ्रेंड्स. जैसे आप मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया और उसने आपका कॉल उठाया नहीं, तो एक ये भी हो सकता है कि उस आदमी ने हमको इग्नोर कर दिया. आई डोंट मीन मच टू हिम, ही हैज इग्नोर्ड मी. तो गुस्सा आता है. ऐसे में जो निगेटिव इमोशंस आने शुरू हो जाएंगे, एंगर आना शुरू हो जाएगा. लेकिन आप अपने कॉन्टेक्स्ट को, फ्रेम को चेंज कर लो, रिफ्रेम कर लो. अगर आप ये सोचो कि हो सकता है कि जिसको मैं फोन कर रहा हूं उसका मोबाइल चोरी हो गया हो, या हो सकता है उसका मोबाइल डैमेज हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि जिसको मैं फोन कर रहा हूं वो बहुत सीरियसली सिक है और हॉस्पिटलाइज है. जैसे ही आप ये थॉट्स अपने माइंड में लाओगे ना, तो आपका तुरंत देखो परसेप्शन चेंज हो गया, रेस्पॉन्स चेंज हो गया. तो इट ऑल डिपेंड्स फ्रेंड्स, द चेंज ऑफ फ्रेम और कॉन्टेक्स्ट, इट कॉजेज एन इंस्टेंट चेंज ऑफ योर इमोशंस. And not only will your anger disappear, लेकिन आप सडनली आप उस आदमी के प्रति केयरिंग हो जाओगे, आपको सिंपैथी आ जाएगा. एक तीसरा एग्जांपल देता हूं रिफ्रेमिंग का. आपके बॉस ने आपके ऊपर चिल्लाया जोर से, तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? यू विल फील वेरी एंग्री. बट आप फिर रिफ्रेम करो, अपने कॉन्टेक्स्ट को चेंज करो. आप सोचो यार हो सकता है ये बहुत बीमार हो, या इसके कोई नियर एंड डियर फैमिली में बहुत बीमार हो, या हो सकता है कि इसके मम्मी या डैडी एक्सपायर हो गए हों इसलिए ये गुस्से में है, या हो सकता है कि वो हमारा टेस्ट ले रहा है
he wants to give me a very senior responsible position and he's testing me कि how I can handle pressure. तो अगर आप इस तरह से रिफ्रेम कर दोगे तो आपका तुरंत इमोशन चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स. तो आपका गुस्सा जो है ना तुरंत खत्म हो जाएगा. These are the various ways. Then another way to manage your emotions, friends, is to practice gratitude. Gratefulness is a very powerful. Last time भी मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था, तो इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे. होता क्या फ्रेंड्स, हम हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लाइफ में कर लेते हैं. और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमको रोज घर पे रनिंग वाटर आ रहा है, घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हम 3 मील्स खाते हैं, तो हम सबको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं. लेकिन हमने क्या कभी ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस किया इन चीजों के लिए कि वी आर सो लकी टू गेट रनिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एंड वी हैव ए रूफ ऑन आवर हेड. हमने इनको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया. वी हैव इंटरनेट इन आवर होम्स, वी हैव टीवी, मोबाइल फोन, एंड सम ऑफ अस हैव गॉट कार आल्सो. वी हैव गॉट ए गुड माइंड एंड बॉडी. देन ये सब चीजों के लिए हमें ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए. एंड सो बट फ्रेंड्स, होता क्या है कि वेरी फ्यू पीपल they practice gratefulness, and therefore very few people enjoy real happiness in life. Very few people can control over their emotions. So हम लोग कितने लकी हैं जो ये सब चीजें बहुत कम लोगों को लाइफ में मिलती हैं. So let us make gratefulness our new habit. Get away from a bad situation. देखो कभी कई दफा ऐसा होता है हमारे वर्क लाइफ में या फैमिली लाइफ में, कभी किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं या तो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं. तो हमेशा ना, जब भी ऐसे कई दफा मीटिंग्स में ऐसा होता है, मीटिंग्स में यू नो देयर आर समटाइम्स यू नो पीपल फ्लेयर अप. तो कभी भी ना ऐसा हो तो साइलेंटली काउंट टू 10 और एक बेवरेज लेके उसको सिप करने लगे, टी या कोई भी बेवरेज उसको सिप करने लगेंगे ना, तो क्या होगा कि हम इम्पल्सिव रिएक्शन से बच जाएंगे. या तो हम 10 तक गिने, डीप ब्रीदिंग करें, कुछ बेवरेज साथ में लेके जाएं, उसको पिएं, तो थोड़ा सा क्या होगा कि देन वी विल हैव ए कंट्रोल ऑन आवर रिएक्शन एंड हमारी बैड फीलिंग्स भी कम हो जाएंगी. सो होता क्या है कि व्हेन वी डू दीज एक्टिविटीज, ब्रीदिंग, काउंटिंग 10 और सिपिंग ए बेवरेज बिफोर रिएक्टिंग, दिस एक्ट्स लाइक ए रिचार्जिंग योर बैटरी. रिलैक्सेशन एक्टिविटीज फ्रेंड्स, अगेन ये भी एक बहुत powerful technique to manage your emotions. When we exercise, friends, positive endorphins and neurochemicals are released in our body, like adrenaline, serotonin, and dopamine. They are released when we exercise. So it's very important for us to do some kind of an exercise, and this will make you energetic, happier, and healthier. Your thinking will become clearer. Sorry. Your thinking will become clearer. You will be able to take better decisions in life. And so first part is exercise. Exercise पे हमें ध्यान देना है. And second thing which we must do is breathing exercise. Breathing exercise will calm your mind. And you must practice it. Give at least 2 minutes to 5 minutes every day. Deep breathing. So it will calm your mind. It will, you know, our brain demands a full 20% of our body's oxygen supply. So when we do proper deep breathing, तो हमारे brain को oxygen supply होता है, and then which helps us to control our emotions, get over anxiety, get over depression. We get a lot of energy, friends. Then, of course, the final method is mindfulness. Practicing mindfulness is a very, very powerful method to manage our emotions, friends. Mindfulness is nothing but, you know, purposely focusing our attention to the present moment. Is nothing else but focusing on the present moment. And the best form of practicing mindfulness, friends, I'll tell you, the best form of practicing mindfulness, see, it's very beautifully says, mindfulness strive to focus on the present. So friends, इसमें इनफॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है, सबसे पावरफुल जो प्रैक्टिस है, दैट इज छोटे छोटे एक्टिविटीज. अब सुबह हम अपना दांत मारने के लिए जाते हैं, या अपना सुबह मॉर्निंग का टी सिप करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उस समय हम माइंडफुल रहें,
हम ब्रश कर रहे हैं तो हमारा ध्यान चारों तरफ नहीं जाना चाहिए. वी मस्ट एंजॉय अवर ब्रशिंग. जब हम चाय पी रहे हैं तो चाय पे फोकस करें. वी शुड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ सिपिंग टी. और मोमेंट, तो चाय भी एंजॉय करेंगे नहीं तो हम चाय पी रहे हैं, दुनिया भर का दिमाग घूम रहा है. होता ऐसे ही है. जब हम शावर ले रहे हैं तो शावर को एंजॉय करें. शावर भी ले रहे हैं, दुनिया भर का सोच रहे हैं, पास्ट फ्यूचर. तो वी ऑलवेज, most of the time we remain in the past or in the future. We very seldom we live in the present. So अगर हम प्रेजेंट में जीने का प्रैक्टिस शुरू कर दें, इवनिंग वॉक जाते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो एंजॉय योर वॉकिंग. गार्डन में फ्लावर्स को एंजॉय करें, लीव्स को एंजॉय करें. तो क्या होगा कि वी विल बी एबल टू डेफिनेटली कंट्रोल ऑन, डेवलप कंट्रोल ऑन अवर emotions, negative emotions. Friend, again, mindful breathing. As I told you, breathing is a powerful technique to have control on our emotions. And it's nothing but, आप चलते फिरते भी कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, कहीं बैठे हो, कहीं भी कर सकते हो. The beautiful part is that you can do anywhere. And the moment you focus your attention to breathing, बाकी सब छोड़ दो, in inhaling, retention, exhaling your breath, within 60 seconds you'll start feeling calm. Within 60 seconds आपके negative emotions खत्म हो जाएंगे. Friends, this I personally practice and I can assure you कि आप ज्यादा नहीं, 60 seconds दिन में कभी भी, जब भी आपको लगे you are getting overpowered by emotions, आप 60 seconds अपने breath को watch करो. Inhaling and retention and exhalation. आप इस पे focus करो, चलते फिरते भी करो, बैठ के करो. You'll feel so calm. You will immediately come to the present moment. That is a very, very, very effective mindfulness method, that is breathing. So, and always also another mindfulness technique is be mindful of your thoughts and emotions. जैसे हमने पहले भी कहा था, उसको लेबल नहीं करना चाहिए. थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, उसको हमें रोकना नहीं है. What you resist will persist. तो हमें जिस ऑब्जर्वर बन के अपने थॉट्स को देखना है, और आ रहा है जा रहा है, उसको रेजिस्ट नहीं करना. रेजिस्ट करोगे तो ज्यादा परेशान करेगा. सो फ्रेंड्स, ये आई थिंक वी हैव कवर्ड today's topic, and so I will stop my presentation here. Thank you all very much for sparing your valuable time and attending this webinar. Thanks a lot. Stopping by. Thank you. Thank you so much.